Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class. Today student, date is 4th February 2021 and I am teaching you chapter number 14, means of transport. Means of transport. So let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, in the previous video, after completing the explanation of the chapter, we had completed the book exercise of the chapter also. Then question number D, give short answer to the following question. This also we have completed in our classwork copy, and we are on question number E, that is answer the following question in detail. Question number E, answer the following questions. So question number 1, give any 3 reasons why we need to travel. This question we have already completed in the classwork copy. So let's start with question number 2, which is the question number 2, which is the most common means which is the most common means of transport. Which is the most common mean of transport used in India. Why? So student, first of all, let's discuss the answer. See, when we are studying different means of transport, then it is divided into 3 parts. That is land transport, air transport and water transport. So now it is asked in the book, out of these 3 means of transport, which is the most common mean of transport which is used by the people.
So student, the most common mean of transport which is used by the people in India, not only in India, you can say in another countries also, क्योंकि बाकी कंट्रीज में भी 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होंगे, जैसे हमारी कंट्री में है लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. सो द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इज मैक्सिमम यूज बाय द पीपल ऑफ इज द लैंड ट्रांसपोर्ट. ठीक है, वो क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट है. सी देयर आर मेनी रीजंस वाई वी हैव टू ट्रेवल to go for our work places, or as a student you have to go to the school. So for going to our work places, the mean of transport we are using is that land transport. Or you go to your school, how you go to your school? By using land transport, because student go to school maybe by bus, auto rickshaw, van, or by bike, motorcycle, scooter, scooty. So in this manner student go to the school. So student, daily we have to go to the market. Daily we have go to the market to buy the things which we need daily, like fresh vegetables, fresh vegetables, fruits, bread, milk. So to buy the daily use of things we have to go in the market, and these market are known as our neighborhood services. So these services are there where we are living, so near our houses, these neighborhood places, and these neighborhood places make our life more easier and comfortable. So for going to the market or the school or to the working place or to the bank or post office, police station, park, so for this the mean of transport which we are using, that is the land transport. ठीक है, मैक्सिमम जो बेटा हम लोग वन प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने के लिए जो भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं वो लैंड ट्रांसपोर्ट करते हैं. इज इट क्लियर? देखो अब जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वहाँ शिप से वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं. इन पार्ट्स ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री हम नहीं बोल सकते, इन पार्ट्स ऑफ ए कंट्री. वाई? क्योंकि शिप्स वहीं चलती हैं जहाँ पे सी है. तो इंडिया में कोई पूरे इंडिया में हर जगह सी नहीं है. ठीक है, सारे इंडिया में हर जगह सी नहीं है, शिप्स वहीं चलती हैं जहाँ पे सी है. इज इट क्लियर? सो वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था, इंडिया का जो आप पोर्शन देखोगे, जो पेंसुलर पोर्शन है, जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड बॉडीज है. ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी और साउथ में इंडियन ओशन. तो ये पार्ट्स में आपके सी हैं, ये पार्ट्स में आपके सीज हैं. ठीक है, सी और ओशन है. तो शिप से जाने के लिए आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हो, एंड फॉर गोइंग टू अदर कंट्री आल्सो आप शिप से जा सकते हो. लेकिन शिप फैसिलिटी एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री अवेलेबल नहीं है. ठीक है, और शिप में क्या, हम वाटर में चलते हैं. अब हमें मार्केट में जाना है, शॉप में सामान खरीदना है, तो ये तो वाटर में नहीं ना हो सकता. इज इट क्लियर? सो वाटरवेज में वही पॉसिबिलिटी है जहाँ पे सी है. ठीक है, और एरोप्लेन है, एरोप्लेन से हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं स्टूडेंट शॉर्ट टाइम में. ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस एरोप्लेन्स एयरपोर्ट से चलते हैं एंड इट कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के लिए एरोप्लेन नहीं होते हैं. ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं शॉर्ट टाइम में. अब आपको मार्केट जाना है, ठीक है, आपको ये पता होगा कि एरोप्लेन्स को
टेक ओवर से पहले वो अपने रनवे पे, जैसे एयरपोर्ट बोलते हैं, रनवे पे पहले बहुत तेज रन करते हैं एंड देन दे टेक द फ्लाइट। ठीक है, सो जो एरोप्लेन है ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है, और जो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट है यह सब जगह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री में सी नहीं है। देयर आर सम प्लेसेस इन विच वी हैविंग द सीज, नॉट ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। सो एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐसा विच इज पॉसिबल इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री एवरीवेयर, वो है आपका लैंड ट्रांसपोर्ट। वो आपका क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट है। ऐसा ट्रांसपोर्ट, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो पूरे कंट्री के हर पार्ट के टच में है, तो वो है बेटा आपका लैंड ट्रांसपोर्ट। और लैंड ट्रांसपोर्ट को भी हमने दो पार्ट्स में पढ़ा था, आपको याद होगा। लैंड ट्रांसपोर्ट को भी हमने दो पार्ट्स में पढ़ा था। एक हमने बोला था द व्हीकल और वैरायटी ऑफ व्हीकल्स विच आर मूविंग ऑन द रोड, उसे हमने बोला था दैट इज नोन एज रोडवेज, एंड द वैरायटी ऑफ व्हीकल्स विच आर रनिंग ऑन द ट्रैक दैट इज नोन एज रेलवेज। सो बेटा आपका एक लैंड ट्रांसपोर्ट ही एक ऐसा है जो इंडिया के हर पार्ट में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट वहीं पॉसिबल होगा जहां पे सी रूट्स हैं। ठीक है, और एयर ट्रांसपोर्ट 1 2 3 4 5 10 20 किलोमीटर के लिए चलता ही नहीं है, ये लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट टाइम में वो कवर करता है। ठीक है, इज इट क्लियर? सो द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इज यूज बाय द मैक्सिमम पीपल ऑफ आवर कंट्री दैट इज द लैंड ट्रांसपोर्ट। और ऐसा हमारी कंट्री में नहीं है, सारी कंट्री में भी ये सेम है। सारी कंट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय द पीपल दैट इज द लैंड ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, नाउ नोट डाउन द आंसर। द मोस्ट कॉमन means of transport the most common mean of transport used in India is land transport. लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, it connects all parts of the country and is less expensive। ठीक है, देखो इंडिया का रोडवेज और रेलवेज इन दोनों का नेटवर्क बहुत बढ़िया है, वेरी गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में रोडवेज और रेलवेज का नेटवर्क बहुत अच्छा है। ठीक है, इन आवर कंट्री रेलवेज और रोडवेज का नेटवर्क जो है बेटा बहुत बढ़िया है हमारी कंट्री में। ठीक है, अब देखो
नाउ सी, सो हमारी कंट्री में रेलवेज और रोडवेज का नेटवर्क जो है बहुत बढ़िया है। सी, विलेजेस आर कनेक्टेड टू द टाउन्स and these small towns are connected to the cities and cities are connected to the big cities, okay, and this is through the highways, ठीक है, this is possible through the highways। villages क्या है बेटा, टाउन से, जो छोटे शहरों को, कस्बों को टाउन बोलते हैं। villages are connected to the towns, towns are connected to the cities and cities are connected to the big city। in this manner in our country there is a very good network of roadways and railways, is it clear? So the things can easily transported to all parts of the country, ठीक है। रोडवेज और रेलवेज का बहुत अच्छा नेटवर्क होने के कारण जो भी चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें या दूसरी थिंग्स हैं, वो इजिली दीज थिंग्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इट कनेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इज लेस एक्सपेंसिव, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है आपका रोडवेज, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसमें, some of the examples, some examples are car, bus, ऑटो, बाइक, एक्सेट्रा, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। सो क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन इंडिया एंड वाई? So the answer is the most common means of transport used in India is land transport. There are three means of transport, that is land, air transport and water transport. So out of these three means of transport, the most common mean of transport used in India is a land transport, okay। what role it plays, what important role it plays? It connects all parts of the country and is less expensive। all parts of the country, what does it mean? It means that the villages are connected to the towns, छोटे शहर कह सकते हो, कस्बे जो होते हैं, the villages are connected to the towns, towns are connected to the cities and cities are connected to the big cities। that is the reason it is here written, it connect all parts of the country and is less expensive। and some of the example, car है, बस है, ऑटो, बाइक, स्कूटर, स्कूटी, ट्रक, मोटरसाइकिल, वैन, ऑटो रिक्शा। so there are many examples of वेराइटी ऑफ मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ट्रेन भी है, मेट्रो ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन, गुड ट्रेन। सो देयर आर मैनी वेराइटी ऑफ व्हीकल्स which are moving on the road also, that is known as roadways, and the variety of vehicles which are moving on the track, that is known as railways। is it clear? So take a screenshot and after that you can note down।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3rd. Question is, how are large quantities of goods transported to other countries? Okay, so note down the question first, then I will discuss. How are large quantities of goods transported to other countries. सो स्टूडेंट देखो, अपनी कंट्री के अंदर जो भी गुड्स कैरी करने का काम करता है वो आपका लैंड ट्रांसपोर्ट भी करता है और रेलवेज भी करता है, ठीक है। क्योंकि रेलवेज में देखो बहुत सी, एक ट्रेन तो होती है पैसेंजर ट्रेन, इट कैरी द पैसेंजर एंड देयर गुड्स, ठीक है, जो पैसेंजर को भी कैरी करने का काम करती है और उसके संग जो गुड्स होता है उसको भी कैरी करने का काम करती है। एंड देयर इज अ गुड ट्रेन, गुड ट्रेन्स में खाने की चीज़ें, ठीक है, सीरियल्स हैं, मीन्स अनाज हैं, क्रॉप्स हैं, तो मैनी थिंग्स आर कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस with the help of the railways facility that is known as, and this is done by the good train. So these trains do not carry the passenger, they only carry things from one place to another. और इसी तरह बेटा कैरी करने का काम रोडवेज में आप ट्रक से होता है। आप देखते होंगे रात के समय इतने ज़्यादा ट्रक होते हैं, ट्रक में भी अनाज जाता है, डिफरेंट और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आती जाती रहती हैं, ठीक है। तो रोडवेज से भी ये काम होता है और रेलवे से भी होता है ये काम। लेकिन अब इस क्वेश्चन में पूछा, इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड हाउ आर लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेड टू अदर कंट्री। वो तो हमने अपनी कंट्री की बात कर ली, बट इफ यू वांट टू ट्रांसपोर्ट द थिंग्स टू द अदर कंट्रीज तो आप क्या करोगे दूसरी कंट्रीज के लिए। तो बेटा दूसरी कंट्रीज में जो गुड कैरी का करने का काम जो होता है दैट इज द वाटरवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट से होता है। एंड दिस इज डन बाय द कार्गो शिप्स। ये बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो ह्यूज क्वांटिटी में, बल्क में, ह्यूज क्वांटिटी में थिंग्स को दूसरी कंट्रीज में कैरी करने का काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो क्या है ना बेटा कि एरोप्लेन बहुत फास्टेस्ट चलता है लेकिन वो इतना हैवी लोड उतना नहीं कैरी करके ले जाता, और ले भी जाएगा तो लार्ज क्वांटिटी में नहीं ले जाएगा, ठीक है। और रेलवेज की हम बात करते हैं बेटा तो सारी कंट्री के अपने अपने रेलवेज हैं। इंडिया के रेलवेज इंडिया में, इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज होंगी उनके रेलवेज इनसाइड द कंट्री होंगे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की ट्रेनें इंडिया में चलती हैं या इंडिया की ट्रेनें अमेरिका में चलती हैं। सारी कंट्री के अपने लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं और अपने रेलवेज होते हैं। दिस द ओनली मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज अ वाटर ट्रांसपोर्ट बाय विच वी आर कनेक्टेड टू ऑल द कंट्रीज। एक वाटर ट्रांसपोर्ट ही एक ऐसा है जिसके थ्रू
सारी कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज आपस में एक दूसरे के टच में है, क्योंकि बेटा ड्यू टू वाटर ट्रांसपोर्ट ओनली देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। जमीन के बहुत बड़े बड़े 7 टुकड़े हैं बेटा। ये सारों सबके सब 7 टुकड़े आपस में कैसे एक दूसरे के टच में? ड्यू टू दिस वाटरवेज। Is it clear? So the huge quantity of things are carried to different part of the country with the help of the cargo ship। और कार्गो शिप क्या लेके जाती हैं? इट कैरीज ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स, मतलब अनाज जो होता है, ठीक है, जिसकी हम लोग खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, ग्रेन्स, गुड्स एंड ऑयल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो ऑयल है बेटा, हम लोग जो ऑयल दूसरी कंट्री से खरीदते हैं, सो दिस इज आल्सो कैरिड, क्योंकि ऑयल के टैंक्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। इतने बड़े टैंक्स एरोप्लेन लेके जा ही नहीं सकता, इतना हैवी वेट एरोप्लेन हवा में उड़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी कैसे हम लोग कैरी करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट, दैट इज थ्रू द कार्गो शिप्स। The cargo ships can transport the cargo ships can transport large quantity of good, large quantity of goods, large quantities of good to other countries। This is our first point. Second point, second point is the it transport grains, goods and oil all over the world। ठीक, see how are large quantities of goods transported to other countries? Is it clear? Now see the answer. This is done by the cargo ship. These are very huge ships which are used to carry the large quantity of goods to the other countries. So the cargo ships can transport large quantity of goods to other countries। It ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स मतलब होता है बेटा अनाज, जो हम लोग फसलें लगाते हैं ना खेतों में, कल्टीवेशन करते हैं, राइस लगती है, वीट लगता है, मेज है, बाजरा है, सो जो हम लोग खेती करते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेन्स, अनाज उगाना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस आल्सो, सो इट ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स, गुड्स एंड ऑयल all over the world। So in all the countries, this is a way
how the things are transported. Okay, thank you student.